everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be studying the third chapter, and the chapter name is Organization, Culture in Business. Now, this is going to be a very easy chapter, and I'll complete it in this lecture itself. बहुत easy chapter होने वाला है, nothing to worry. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ difficult है, वो writers के नाम pronounce करना. So don't worry. उसके मतलब मैं ज़रूर बता दूंगा, but pronunciation is up to you. Anyways, let's get started. ओके काफ़ी इजी है, काफ़ी छोटा चैप्टर है. सो वील बी कंप्लीटिंग इट होपफुली इन विद इन हाफ एन आवर और 40 minutes. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके लेट मी जस्ट ज़ूम दिस. ओके तो यहाँ पे बताता है कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होता है. पहले मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ. राइट नाउ आई बी रीडिंग द हिल एंड जोन्स डेफिनेशन. So the specific collection of values and norms that are shared by people and groups in an organization that control the way they interact with each other and with stakeholders outside the organization. Okay. Second definition is the way we do things around here. Now, okay. Definition का क्या मतलब है? What does actually corporate culture means? Now, after completing your ACCA, जब आप अपना PER करने जाओगे, which is of 36 months. Now, this is what you will be doing, right? So this is what the corporate culture, this is what the kind of atmosphere you'll be set in, right? So what does this mean, right? So first of all, जब भी आप कोई कॉर्पोरेट में जाते हो, अभी आप कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में जाता हो, वहाँ पे एक थोड़ी चीज़ होता है जैसे कॉमन बिलीव्स. मैं बस यहाँ पे आई हैव माई नोट्स ओवर हियर, सो आई जस्ट बी रेफरिंग. राइट सो कॉमन बिलीव्स होते हैं, ठीक है. एक रूल्स होते हैं, एक सर्टेन वे ऑफ डूइंग थिंग्स होते हैं. राइट यू कैनॉट, आपकी मनमानी नहीं चलेगी वहाँ पे. राइट दिस इज व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर. सेकेंड वन इज एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो देम. आप वो रूल्स को तोड़ के नहीं जा सकते, अदरवाइज यू माइट गेट टर्मिनेटेड. You will have to follow certain kind of rules, regulations, doesn't matter if you like it or not, right? Third one is it affects how company interacts with customers, suppliers, government, society. ये आप क्या बात कर रहे हो भैया? बट आपने तो बोला कि अभी तो आप बहुत हम इंटरनल बात कर रहे हैं, अब सडनली आप आउटसाइड चले जाते हो. उसका मतलब है स्टेक होल्डर्स का क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हिल एंड जोन्स के डेफिनेशन में, एंड विद स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो भी कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर है, ठीक है, वो टॉक्सिक है या अच्छा है. सो हाउ डज इट अफेक्ट? इट डज अफेक्ट जो उनके कस्टमर्स है, जो उनके सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है. राइट सो कॉर्पोरेट कल्चर शुड ओवरऑल बी गुड. राइट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड? Okay. So now each organization will have its own distinctive rules, cultures, and behavior acceptable in one organization culture may be inappropriate in another. So आप सपोज एक्स वाई कम, सो डेलॉयट है और केपीएमजी है. राइट डेलॉयट का एक सर्टेन वे ऑफ तरीका होगा काम करेगा, केपीएमजी का सर्टेन. आप ये नहीं बोल सकते ये वो तरीका गलत है, ये तरीका गलत है. राइट सबके अपने अपने रूल्स है, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी शुड बी हैप्पी. अंडरस्टूड? राइट For example, some companies will expect staff to undertake additional work in their own time, while other organizations will not. Right? Most other organizations बोलते हैं कि भाई आपको सैटरडे और संडे भी काम करना है, which is probably their policy, and you cannot say कि मैं काम नहीं करूँगा, otherwise you'll get terminated. Right? This is what is a corporate culture. Understood? Second one is components of what do you call corporate culture. Now there are mainly three components of corporate culture. Right? So first one is norms, right? A set of norms. मैं इसको norms ही बोलूँगा. ठीक है. Second one is symbols. Third one is a set of shared values and beliefs. आप ये flow chart बना लीजिए. मैं notes भी लाया हूँ, पर I have made few notes so that क्या lecture का time नहीं बढ़ता. Right? Now what are norms? Right? What people should do. ठीक है. आप एक कंपनी में जाते हो, what is the first thing probably you do? Probably you'll scan your biometric, right? You'll give you a biometric so that you have arrived, and the office people know that you have arrived. That is a kind of norm which is there in the organization. Okay. Second one is symbols. Now symbols could be anything, and mostly ये informal होता है. Right? Suppose किसी का birthday है, आपको वहाँ पे केक लाना है. This is probably a symbol. This is probably a gesture which is probably running in the organization, right? It's nothing to do with rules, but is something to do with gesture. Right? जैसे सैटरडे नाइट पार्टी होता है, बहुत कॉमन होता है ये सब कॉर्पोरेट कल्चर में. राइट एंड शेयर्ड या द थर्ड वन इज सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स. अगेन
शेयर्ड वैल्यूज क्या क्या कंपनी ज़्यादा इंडिविजुअल गोल्स पे फोकस करता है जो जनरली केस नहीं होता है, जो क्या कंपनी बहुत ऑर्गेनाइज क्या कंपनी दोनों को बैलेंस कर पाता है, क्या उसका वो बिलीव है. तो दीज आर अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स. नथिंग, एक बार रीडिंग होना, दैट्स इट. ओके. नाउ द फैक्टर्स दैट शेप द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका है HTDAHO, ये याद रख लेना. ओके. मैं अच्छा, मैं क्या करूँ, पहले ही लाना चाहिए, कोई बात नहीं. याद है, HTDAHO, आपके बुक में आप लिख सकते हो, राइट. सो HTDAHO. सो S स्टैंड्स फॉर, सिंपल है, S स्टैंड्स फॉर साइज. साइज मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है. दिस विल एंड मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ उनकी सेल्स क्या है, या इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज है, क्या है, बड़ा छोटा किस मामले में है, राइट. एंड यू आर स्टडिंग द स्टार्ट शेप द कल्चर, लाइक कल्चर कैसे शेप होगा, उसके फैक्टर्स है. ओके. उसमें पहले साइज आता है, तो साइज में क्या आता है कि बड़ा है छोटा है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सेल्स, एम्प्लॉयज, ऑफिस स्पेस एक्सेट्रा, राइट. सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी. नाउ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, नाउ हाउ वेल द कंपनी इज एनेबल्ड विद टेक, राइट. मतलब वो टेक्नोलॉजी को कितना अडेप्ट करता है. देयर आर मेनी कंपनीज, स्पेशली इन व्हाट यू कॉल SMEs, you will find that many companies not tech adaptive, right. It's okay, but उनका एक negative point होता है, understood. And the third one is diversity, right. Now diversity मतलब क्या, in terms of people, no, हो सकता है. See, that could be again be one of the factor, but that is not the main factor. The main factor is in terms of what are their SKUs of, what are the SKUs of their business, मतलब क्या प्रोडक्ट रेंज है, ठीक है. कौन से जोग्राफिकल एरियाज में वो लोग काम करते हैं, नॉर्थ में ही काम करते हैं, साउथ में काम करते हैं, या चारों डायरेक्शन में काम करते हैं, अंडरस्टूड. द फोर्थ वन इज एज, राइट. एज मतलब क्या, नाउ एज इन टर्म्स ऑफ हाउ ओल्ड इज द बिजनेस, हाउ एस्टैब्लिश्ड इट इज, उसकी मतलब कितना पुराना है, जनरली जितना पुराना होता है उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है मार्केट में. सी, बिकॉज यू आर रनिंग दैट बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ वन राइट, हाँ फिफ्थ वन इज हिस्ट्री. अगर आप बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लो, आप क्यों हो, राइट. आपका मेन पर्पस क्या रहा इस ये जगह पे, दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री, अंडरस्टैंड. द लास्ट वन इज ओनरशिप. नाउ ओनरशिप मतलब क्या, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज, कनेक्टेड इट टू व्हाट, विच चैप्टर. आप मुझे बताइए चैप्टर का नाम क्या था, जहाँ पे हमारे पास क्या थे, फर्स्ट चैप्टर है. सो सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी, उसमें प्राइवेट लिमिट, प्राइवेट पब्लिक, ये वो. ओके. सो ये फैक्टर्स तो हो चुका है. एक मिनट गाइस, ये एक बार पी लेता हूँ. या सो फैक्टर्स हो गए. अदर इन्फ्लुएंसेस आप ये पढ़िए, कुछ भी नहीं है, इज जस्ट सिंपल रीडिंग. बट ये मेन फैक्टर्स है, ये आपको याद करना है. ये आप एक बार वैसे एक रीडिंग लगाइए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, काफ़ी इजी है, ठीक है. नाउ राइटर्स ऑन कल्चर, वेरी वेरी इजी, बस नाम थोड़ा है जैसे. नाउ ओके. ओके, सो आई बेसिकली व्हाट आई डू, आई गो टू माय नोट्स. परफेक्ट, राइट. सो कॉर्पोरेट कल्चर में, नाउ जो कॉर्पोरेट कल्चर को डिफाइन करते हैं प्रॉब्ली, उनके बेसिकली कौन कौन लोग हैं. सो मेनली देर आर थ्री राइटर्स. वन इज शाइन. सो इसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, बट मैं इसको शाइन बोलूंगा. देन सेकेंड वन इज हॉफस्टड, एंड द थर्ड वन इज हैंडी, राइट. नाउ दीज आर द थ्री मेन पीपल. ये बहुत व्हाट यू कॉल वैसा वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया, बट ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है, राइट. नाउ सो अगेन, तो पहले हम शाइन पे आते हैं, राइट. शाइन क्या बोलता था, शाइन हमें ये बोलता था कि, एक मिनट, हाँ, शाइन हमें ये बोलता था कि जो भी लीडर्स रहेंगे, जो फर्स्ट लीडर्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वही ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, राइट. दे विल डिफाइन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, खत्म. Nobody else will define the support. No, nobody will define the type. Nobody will define the culture of the organization. जो first leaders रहेंगे, they will decide कि भाई
organization का क्या culture रहेगा, right? Now Shine argued that the first leaders of a company create its culture. Future leaders will only be selected if they support this original culture. Now, thus the link between culture and leadership is very strong and it can be very difficult to change. ठीक है ना? ये जो शाइन थे, ये अगेन थ्री पार्ट्स में अपने थियरी को डिवाइड करते हैं, राइट? विच इज artifacts, okay, which is artifacts, espoused values and basic assumptions. Perfect. So आर्टिफैक्ट्स का क्या मतलब होता है? जो इजीली दिखता है, प्रॉब्ली जो ड्रेस कोड रहता है, राइट? जो प्रॉब्ली जो ग्रीटिंग होता है कि आते ही हम क्या अपने कलीग्स को ग्रीट करते हैं, विच इज इजीली सीन, जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स. सेकेंड वन इज एस्पाउस्ड वैल्यूज. एस्पाउस्ड वैल्यूज का मतलब क्या कि स्ट्रैटेजी क्या है, गोल्स क्या है भाई ऑर्गेनाइजेशन के. इसमें जनरली आपका कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, राइट? मिशन स्टेटमेंट. और क्या मिलेगा आपको? और लेगा कंपनी का स्लोगन, राइट? ठीक है. एस्पर्स वैल्यूज का मतलब क्या, जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्या होते हैं? जनरली मिशन स्टेटमेंट में होता है, कंपनी का स्लोगन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? The third one is basic assumption and values. Now, basic assumption and values, these are very difficult to identify as they are unseen and exist mainly at an unconscious level, राइट? जनरली बहुत जो न्यू रिक्रूटमेंट से आते हैं लोग, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो न्यूली रिक्रूटेड होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज इन बिल्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट फर्म. ओके, शाइन हो गया, राइट? नाउ हैंडी, ओके, मैं हाँ हैंडी भी he has classified his definition of corporate culture into four types. One is power, second one is one is power, second is role, third is task, fourth is person. Okay, handy. So इसका मैंने बनाया PRTP. PRTP का काफी easy है to remember that acronym, right? So what does the power culture say, right? So power culture basically ये बोलता है कि how much how what influence is being maintained by that particular organization. I'll give you a good example of it. ये generally entrepreneurial structure में काम आता है, but the example I'm giving will not be so relatable to an entrepreneurial structure, but take it as an example कि power मतलब क्या होता है, right? थोड़े साल पहले के जोमेटो की कंपनी में जो FII का व्हाट यू कॉल स्टेक था, FII विच इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब क्या, जो बाहर से लोग जोमेटो की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, विच वॉज मोर देन 50%. अगर आपको पता होगा, जोमेटो का द फाउंडर इज दीपेंद्र गोयल, राइट? ठीक है. नाउ एफ द सीईओ, उनके पास ऐसा थ्रेट था कि FII डायरेक्टली बोल सकते थे दीपेंद्र गोयल, प्लीज यू स्टेप डाउन फ्रॉम द पर्टिकुलर रोल विच यू हैव इन अ कंपनी, ऑल्दो ही हैज बिल्ट इट. बट FII का जब मेजोरिटी स्टेक किसी और इन्वेस्टर का हो जाता है, तो ये तो पावर होता है, राइट? जो नॉर्मल हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास इतना पावर नहीं होता है. अंडरस्टूड? बट ये ज्यादा कौन से स्ट्रक्चर में काम आता है? एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में काम आता है. ओके. सेकेंड वन इज रोल, राइट? नाउ व्हाट डज रोल से? आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, सो फास्ट हो जाए. So role. So people do their work on the basis of job role, not on basis of purpose of creativity. एक बंदे को फाइनेंस, सपोज एक बंदे को डिजाइन देता जाता है, उसका एक पर्टिकुलर डिजाइन का काम है, वो डिजाइन ही करेगा अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन टेम्पलेट. ठीक है. नाउ ही विल नॉट रिक्वेस्ट हिज सीनियर अथॉरिटी to change to change the template which might look better, right? उसको एक डायरेक्शन दिया हुआ है, he'll put the blinders and he'll work. That is the basically role culture वो बोलता है, right? So people do their work on basis of job role, not on basis of purpose of creativity, right? इसमें क्लियर रूल्स रहते हैं, क्लियर हायरार्की रहता है, राइट? कोई भी आपको अगर सपोज एक्स पर्सन को ये काम करना है, एक्स पर्सन को यही काम करना है, एक प्रॉपर हायरार्की रहता है मैनेजमेंट का, राइट? एंड इट वर्क्स वेल इन स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, इट रियली वर्क्स. स्टार्टअप्स में दिस विल फेल. स्टार्टअप्स में एवरी पर्सन नीड्स टू बी डायनामिक. जो भी एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब जो होते हैं, इनमें वो बहुत अच्छे से काम करते हैं. ओके. थर्ड वन इज टास्क कल्चर. टास्क कल्चर इज ऑपोजिट ऑफ रोल कल्चर. टास्क कल्चर ये बोलता है, भाई तू मेरा काम करके बता दे, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ से करेगा. दिस इज बेसिकली
ये कौन सा एक फ्रेज से काम करता है, या इडियम जो भी बोलते हैं उसे. सो हुक और बाय क्रुक, यू डू द वर्क, इट डजेंट मैटर कैसे करना है, काम कर, अच्छा काम कर, सिंपल. ठीक है. इसमें फ्लेक्सिबल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका सेम उल्टा होता है. सो रोल कल्चर का उल्टा टास्क कल्चर होता है. वर्क मेजर्ड बाय रिजल्ट्स. ठीक है. Fourth one, last one in the handy type. So individual में क्या बोलता है, individual is more important than the organization. Okay, individual is more important than the organization. Understood. He works independently. High skill groups, very small team होगा यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि तभी काम आएगा. राइट. बहुत छोटी टीम होती है. जैसे थोड़े बड़े बड़े कंपनीज में भी खाली 30 लोग रहते हैं. एंड यूल सी दैट जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कंपनी की, वो भी बहुत अमीर है, वो भी कोई फरारी जैसी गाड़ी चलाती है. तो दिस इज मोर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल मोर देन द ऑर्गेनाइजेशन. they don't want to they don't want to have a big team, they want to have a small team which should be efficient. Okay. अब हॉफस्टाइट के बारे में ये थोड़ा, हाँ, बहुत सारी चीजें दे दिया, बट ओके, कोई बात नहीं. सो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या. मैं सपोज मैं आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ, आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ. राइट. वेर एज कलेक्टिविज्म क्या सोचेगा, आई विल फोकस ऑन द होल ग्रुप. राइट. नाउ फोकस ले सकते हो, सपोज एक कंपनी है, उसमें एक सेल्स टारगेट दिया हुआ रहता है. राइट. You have the sales ability, you could diversify your work and get the sales done, and you could be at a peace of mind. But you decided to take that own responsibility, you did, you got the sale, it's okay. But what is this is called individualism. But अगर आप यही ग्रुप का सोचते, सबका भला का सोचते, that is called collectivism. Now why I have written countries over it, this is basically an example, you know, where it is followed. Right. It is followed in UK, it is followed in Canada. राइट. यहाँ पे कोलैबोरेटिव टीम वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है. जहाँ पे जापान इज रियली नोन, इफ यू सी जापान में लॉयल्टी बहुत होता है एक पर्टिकुलर कंपनी में. राइट. दिस इज द थिंग यू विल नोटिस, दैट्स व्हाई जापानीज आर वेरी स्पेशल. राइट. सेकंड वन इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. नाउ हाउ कंफर्टेबल इज अ कल्चर विद चेंज एंड रिस्क एंड डाइवर्सिटी. राइट. ठीक है. मतलब कल्चर, अगर सब कल्चर बोल रहा हूँ, सब जो कंपनी है वो अपने आप को कितना जल्दी बदलता है, कितना ही डज, मतलब द कंपनी इटसेल्फ डजंट फील हेजिटेटेड टू चेंज इटसेल्फ. राइट. टू चेंज इट्स कल्चर. ओके. एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट इन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज वहाँ पे एक सर्टेन वे ऑफ वर्किंग होता है, दे हैव अ प्रॉपर methodological order and they'll follow that. Very difficult, very difficult. ठीक है. Now high, इसमें भी again high versus low. High, you will find that people in Japan will try to change with the corporate culture, they are not hesitant, whereas India में ऐसा नहीं होता है. There are certain kind of difficulties, we are not so adaptive to frequent changes. Okay. थर्ड वन इज पावर डिस्टेंस. पावर डिस्टेंस नाम में ही है, मतलब एक कंपनी में बॉस और एम्प्लॉयज के कितना तुम इनइक्वालिटी झेल सकते हो, मतलब ये नहीं, मेरा मतलब ये है, जो बॉस का सुपेरियरिटी होता है, हाउ वेल इज दैट बीइंग बैलेंस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन इट्स एम्प्लॉयज. सी how well it is how well that unequal power is accepted is called as power distance. Okay. इसका एग्जांपल बेस्ट, सबसे जो स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो दुकानें होते हैं, आप ये देख सकते हो, बॉसेस की बात वहाँ पे बहुत चलती है. अंडरस्टूड. और एम्प्लॉयज उसको कितना झेल सकते हैं, उसे हम पावर डिस्टेंस कहते हैं. ओके. फोर्थ वन इज masculinity versus femininity. Now if you go with the actual definition, it's completely different. यहाँ पे आप थोड़ा अपना, ये थोड़ा मैं बोलूँगा मगब भी नहीं, बट समझने की कोशिश कीजिए. राइट. नाउ दिस फोकसेस, नाउ दिस, 1 minute. Now, this focuses more on competition, success, and it is motivated by pay, status, recognition. There are, बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसों से बहुत प्यार करते हैं, जो recognition चाहते हैं, जो एक sense of achievement चाहते हैं. Whereas on the femininity side, people more focus on relationships. They want to establish relationships. And now unfortunately, there's no balance between both of them.
That's why a versus has been put between them. And it also focuses on work life balance, right? It does not focuses on competition, success, how ahead I am from my competitors. Okay, it focuses on work life balance, and it is motivated by relationships, a positive relationship. Second one is okay, you will find one more thing. Just a second. Yeah, in the textbook you'll also find. Okay, first I'll explain this. So second, sixth one is indulgence versus restraint, right? Now this is the add one, इसको ऐड करा गया है. सो इंडल्जेंस का क्या मतलब है कि जब मैं कॉर्पोरेट कल्चर में होता हूँ, हाउ मच हाउ मच द कंपनी फोकसेस ऑन एंजॉयमेंट, ऑन फ्रीडम, राइट? कितना कंपनी इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा वर्क करता है, राइट? ठीक है. सो ये ज़्यादा आपको ज़्यादा कौन से कंट्रीज में पाया जाएगा? यूएसए हो गया, मेक्सिको हो गया, एक्सेट्रा. नाउ रिस्ट्रेन क्या हो गया? जैसे लिमिटेड एंजॉयमेंट हो गया, राइट? स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया. एग्जांपल रशिया. नाउ रशिया में तो इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है दैट यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट? दिस इज अ थिंग इन रशिया. यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अदरवाइज यू बी जेल्ड और फाइंड. अंडरस्टूड? नाउ जो एक और एक चीज है बुक में, दैट इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन versus long term orientation. I suggest that you read from this from the textbook. Easy है, क्या ही है. थोड़े कंपनी जो होते हैं जो शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं, जो थोड़े कंपनी ये होते हैं जो लॉन्ग टर्म पे. ये मतलब ये क्या पढ़े, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नथिंग टू रीड अगेन, राइट? फिर भी आप एक बार रीडिंग लगाइए, राइट? ओके, नाउ दिस इज डन. या हॉस्टेड हो गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गया. ठीक है. अगेन लास्ट टॉपिक we'll complete. Okay, informal organization. Let's look at the definition. Now the informal organization is the network of relationships that exist within an organization. मतलब क्या? सपोज मैनेजर सबऑर्डिनेट होता है, उनके बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप्स है. बट जब वो जैसे कैंटीन जैसी जगह पे मिलते हैं, व्हेन दे गो आउट, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड होता है, राइट? सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज how well you'll understand each other's problems will make the relationship better, right? Otherwise क्या होगा, feud आ जाता है, conflict आ जाता है. So क्या होता है? So this is why the informal organization is a network of relationships that exist within an organization. Okay, now this network evolves over time, obviously, and tends to arise through common interest and friendships between members of staff. आप लीजिए सपोज एक मैनेजर है जो एचआर का है, एक मैनेजर है फाइनेंस का, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट है, उसको फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जो फाइनेंस का मैनेजर है उसके साथ उसकी ज़्यादा बनेगी, ठीक है, बिकॉज एक कॉमन इंटरेस्ट है, एंड दे गेट कनेक्टेड वेरी फास्ट रादर देन. इट्स नॉट दैट द एचआर मैनेजर विल नॉट गेट कनेक्टेड, बट जो कनेक्शन जल्दी बनता है दोनों के बीच, जो फाइनेंस वाले भाई है उन दोनों के बीच में बहुत जल्दी बनता है. अंडरस्टूड? अगेन, now think of the informal very important. Think of the informal organization as being an aspect of the organization's culture. ठीक है, इसमें एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, राइट? बेटर मोटिवेशन. अगर मेरे व्हाट यू कॉल मैनेजर से बनती है, आई एम मोटिवेटेड टू कम टू द ऑफिस, राइट? मुझे ये ना रहे यार वो ऑफिस वो साला मैनेजर फिर से मेरे को पकाएगा. सो दैट फीलिंग यू डोंट हैव, राइट? So you're motivated to go to the office. Better communication, obviously, as said. Provision of social control. And disadvantage, inefficient organization. अगर क्या होता है, जब अच्छी बन जाती है तो इनएफिशिएंसी बढ़ने लगती है. यू डू मोर टाइम पास, राइट? यू डोंट फोकस मोर ऑन वर्क, यू फोकस ऑन रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स. दिस इज वेरी कॉमन, बट दैट शुडंट हैपन इन अ कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट ऑफिस. द ग्रैपेमीन इफेक्ट, वेयर पोटेंशियल इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और रूमर्स. सबसे घटिया चीज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज है कि रूमर्स बहुत जल्दी घूमते हैं. ऑब्वियसली ये तो सबके लाइफ में होता है भाई. ओके, नाउ लास्ट पार्ट. द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन ईदर enhance or hold back the business. Now, managers need to be aware of the informal structure and ensure that they adapt the formal structure to complement the informal one. Very important. Basically, ये बोल रहा है कि informal organization अच्छा है पर बुरा है. पर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है,
right? Maintain a looser formal structure so that informal structure can thrive. Obviously ज़्यादा formal restrictions नहीं लगाने चाहिए, restrictions ना लगाओ so that people will thrive better in the organization. And at the very least take account of informal structure in decision making, very very helpful. जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, हमेशा याद रखना, फॉर्मल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, बिकॉज यू नीड परमिशन, ऑफिशियल परमिशन फ्रॉम ईच एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल में प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज you just decide and you come to an conclusion. This is the best part of the informal organization, right? So again, so we are done with this. Let me see if I missed or is there kuch. No. Yeah, perfect. Okay, so that's it. We are done with this chapter. I'll be completing I'll be explaining the next chapter in the next video. That's it. Thank you.